Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का यूनिट नंबर 8 and the title of unit is Appreciating the Value of Labor. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे एक रोल प्ले है। रोल प्ले में ओरल कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक जारा का और एक मदर का। जब भी रोल प्ले आता है तो हम अपनी क्लास में से दो स्टूडेंट्स लेंगे और इसको एज एक रेपिटेटिव एक्टिविटी करवाएंगे और एक स्टूडेंट जारा का रोल प्ले करेगा और एक स्टूडेंट रोल प्ले करेगा आपके जो मदर का। मदर, व्हाट आर यू कुकिंग? फ्राइड राइस। यम्मी, आई लव दैट। हाउ डू यू कुक इट? First, heat the cooking oil in a pan, then add the garlic, onions and salt into the oil. Fry over low heat for a minute. Why do you fry them over low heat? So that they will not be burnt. Okay, what do you do after that? Next, add rice and fry it until there is a fragrant smell. Fragrant smell? Yes, when there is a fragrant smell, add peas and eggs to the rice. For how long do you fry the rice? Fry the rice for about 15 minutes, then add some pepper and tomato sauce for adding flavor to the rice. Now I am going to serve the rice into a plate. Finally, cut some spring onions and chilies for garnishing. Yum! The fried rice looks delicious. Can I eat it now? Of course, sit down and enjoy it. Now, reading and critical thinking. Answer the following questions. What is the Holy Rasul Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam reported to say about labor? The Holy Rasul Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam is reported to say a laborer is a friend of Allah. Why is real greatness hard to achieve without labor? Real greatness is hard to achieve without labor because it is the labor and the industry which has contributed to the progress of civilization. Most of the facilities of the life today are due to the hard work done by the people. Many people have a mistaken idea that manual labor is means of a poor man's livelihood. Is manual labor less important than mental work? No, manual labor is not less important than mental work. We should not regard physical labor as less respectable than mental labor. Without the tough labor of farmers, we would not get food. Now, next. How did the Holy Rasul teach dignity of labor? The Holy Rasul worked with his own hand. When the Masjid Quba was being built, the Holy Rasul worked along with his companions. He would also repair his shoes and mend his clothes with his own hands. He helped his wives with his household tasks. What are the benefits of self-help and labor in general? The benefits of labor are countless. Labor reduces dependency on others and brings prosperity. It improves the worker's self-respect and cures vanity. Hard labor promotes personal health and leads to progress of the whole society. What would happen if a worker, farmer, sweeper stopped their work? If worker, farmer and sweeper stopped their work, then we cannot get food, our houses and surrounding will not be clean. Now, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच फिगरेटिव लैंग्वेज की एक टाइप होती है। इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, मेटाफर, आयरनी। इसमें बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इसका जो मकसद होता है वो हमारी स्पीच के अंदर फैंसी चीजों को ऐड करना होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज की मदद से हम अपनी स्पीच को, अपनी राइटिंग को फैंसी बनाते हैं। इसमें हमारे पास इसके कुछ फिगर्स होते हैं जिसमें सिमिली, मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया और पन एंड इलिट्रेशन होते हैं। इसमें से कुछ हमारे इस बुक में है, कुछ अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिमिली। जब हम सिमिली के बारे में बात करते हैं तो सिमिली का मकसद दो अनलाइक मीन दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना होता है और इसके कंपैरिजन के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो या तो लाइक का करते हैं या एज का करते हैं। जैसे कि द क्लाउड लुक्ड लाइक कॉटन बॉल्स। अब क्लाउड और कॉटन बॉल आपस में अनलाइक है, ये मिलते ही नहीं है, लेकिन आपने इसको लाइक से मिला दिया। द एज ऑफ द शोवल इज एज शार्प एज नाइफ। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन में लेकर आता है, लेकिन वो कंपैरिजन आपका जो होता है वो उससे अनलाइक ही होता है, यानी कि वो लिटरली ट्रू तो नहीं होता बट उस आइडिया को कंपैरिजन से मिला देता है।
जैसे कि लव इज अ बैटलफील्ड, बेबी यू आर अ फायरवर्क। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली एक पोएटिक लिटरेरी डिवाइस है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को और एनिमल्स को आपकी ह्यूमन ट्रेट्स देती है, जैसे कि द ट्रीज डांस विद द विंड। अब नॉन लिविंग थिंग तो ट्री है नहीं, लेकिन ये एक आपके पास प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, एनिमल्स आएंगे वो एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, तो ये ह्यूमन ट्रेट दे रहा है। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस। अब बात करते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसी हमारे पास लिटरेरी डिवाइस होती है जो कि एम्फोसिस करती है कंपैरिजन में, लेकिन उसमें एक्सट्रीम एग्जैगरेशन की तरफ ले जाती है आपको, यानी कि मुबालगा आराई की हद कर देती है। आई एम सो हंग्री I could eat a horse. I have seen this movie 100 times. Onomatopoeia वो वाली लिटरेरी डिवाइस होती है जो कि किसी भी चीज की साउंड को रिप्रेजेंट करवाती है, जैसे कि टिक टिक, बजिंग, इस तरीके से। Now, read the following sentences and write simile or metaphor, personification, hyperbole or onomatopoeia. Now, it's cost an arm and leg. It's metaphor. The pen is mightier than sword. Metaphor. The car horn beeped loudly. अब इसमें beeped की आवाज है तो ये onomatopoeia है। Hamza is as brave as a lion. Simile. The house was a zoo. Metaphor. Maria is like an angel. Simile. My teeth chattered as I stood in the snow. अब chattered basically आपकी एक आवाज आती है, तो ये आपकी अगेन पर्सोनिफिकेशन आएगी। यू कैन हेयर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। पर्सोनिफिकेशन। द लीफ क्रंच्ड अंडर माई फीट वॉकिंग थ्रू द वुड्स। पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। लाइक आ गया तो सिमिली। द स्नो सीम्स लाइक अ व्हाइट ब्लैंकेट। सिमिली। द विंडो पेन्स वर टॉकिंग एज द विंड ब्लो थ्रू देम। पर्सोनिफिकेशन। Her eyes were like diamonds. Simile. This is the best book ever written. Now this is hyperbole. Now अब हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्ट और ओपिनियन की। फैक्ट और ओपिनियन के बारे में जब बात करते हैं, फैक्ट जब भी बनता है वो किसी रिसर्च पे और ऑब्जर्वेशन पे बनता है। फैक्ट वो चीज होती है जिसको प्रूव किया जा चुका होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नाउ ओपिनियन वो होता है जो किसी की फीलिंग या थिंकिंग की बेस्ड पे होता है और इसको आप ट्रू या फॉल्स में जो है वो नहीं बता सकते। नाउ आइडेंटिफाई ईच स्टेटमेंट एज अ फैक्ट और एन ओपिनियन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना was the first governor general of Pakistan. It's fact. The scientific name of domestic cat is Felis cast. अच्छा, अब ये scientific named है, it has been proven, तो ये भी fact है। I think cats make the best pets. अब ये think में है तो opinion. Young cats are called kittens. ये fact है। The slide is the most exciting part of the playground. ये opinion है। Mosquitoes are the most annoying insect. अब ये भी अभी तक ऐसी कोई चीज proved इसके बारे में नहीं हुई भी, तो ये भी आपका opinion है। फुटबॉल इज बेटर देन क्रिकेट। अब फुटबॉल आपकी क्रिकेट से बेटर है कि नहीं, अगेन दिस इज ओपिनियन। अ बॉलिंग बॉल हैज 3 होल्स इन इट, तो ये फैक्ट है। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसके बाद जो इसमें सवालात आएंगे हम उसके जवाब देंगे। द सिम्पसन इज अ फेमस कार्टून सीरीज अबाउट अ टिपिकल अमेरिकन फैमिली। होमर सिम्पसन इज द फादर एंड मार्ज इज हिज वाइफ। बार्ट, लीजा एंड मैगी आर देयर चिल्ड्रन। Homer is 36 years old. He is a safety inspector at the Springfield Nuclear Power Station. His hobbies was watching television and eating donuts. He is not a perfect father, but he is a good man. Marge is 34. She has long blue hair. She is a fantastic mother, but she doesn't have time for hobbies. Maggie is a baby. Her hobby is watching television. Her sister Lisa is 8. She is an excellent student, very smart, and a saxophone player. She is a vegetarian. Her brother Bart is very intelligent but disobedient. He is often found in Principal Skinner's office and Springfield Elementary School. Now, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की।
What is The Simpsons? It's a cartoon series. Option A. Who are Bart, Lisa and Maggie? It's option B, brother and sister. What is the synonym for the word perfect? It's option A, ideal. What is the antonym of the word active? अच्छा, एंटीनम हम ऑपोजिट को कहते हैं और सिनोनिम हम कहते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग को। तो बेटर, तो परफेक्ट का जो सिमिलर मीनिंग था वो आइडियल था। अब हमने ढूंढना है व्हाट इज द एंटीनम फॉर द वर्ड एक्टिव। एक्टिव का ऑपोजिट क्या होगा? तो इट्स ऑप्शन ए, लेजी। नाउ व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड लॉन्ग? लॉन्ग में मतलब लंबा, तो इट्स ऑप्शन ए, लेंथी। व्हाट इज द एंटीनम ऑफ द वर्ड डिसोबीडियंट? डिसोबीडियंट का ऑपोजिट, तो यानी कि ऑप्शन सी, ओबीडियंट। व्हाट इज द एंटीनम ऑफ द वर्ड स्मार्ट? स्मार्ट होता है इंटेलिजेंट, यानी कि आप अगर उसको देखें तो क्लेवर कहते हैं, लेकिन हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो इट्स बेसिकली स्टूपिड, ऑप्शन सी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेजिटेरियन? वेजिटेरियन होता है जो कि आपका वेजिटेबल्स पे आता है, तो इसका सिनोनिम होगा हर्बीवोरस। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।